Hello, assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about cementogenesis. We also in the last lecture covered almost half of the cementogenesis. Cementogenesis, as I have already explained in the last lecture, is the process of cementum formation. Cemento in this term is for cementum and genesis stands for development. So cementogenesis basically is the process of formation of cementum. Cementum, as we know, is one of the hard tissues of your tooth and it covers the root part of your tooth over the dentine of the root. Cementum, as all the other hard tissues of the tooth develop from the tooth germ, it also develops from one of the part of the tooth germ, which is the dental follicle. Dental follicle, other than cementum, also gives rise to two other structures, three in total: the cementum, the periodontal ligament, and the alveolar bone. And the forming cells for these three different tissues are different. The forming cells for cementum are cementoblasts. The forming cells for alveolar bone are osteoblasts. The forming cells for PDL are the fibroblasts. So these three different types of cells are basically differentiating from one part of the tooth germ, which is the dental follicle. So dental follicle is divided into three layers depending upon the derivation of its cells and the type of the cells it gets differentiated into. The innermost layer, which is right adjacent to the root, the Herpes epithelial root tree, is derived from the neural crest cells, and this layer of cells differentiates into cementoblasts. However, the intermediate layer, which is present between the inner and the outer layer, is derived from the mesoderm, and it gives rise to fibroblasts for PDL development. However, the outermost layer, which is right adjacent to the alveolar bone, is also mesodermal in origin, but it gives rise to a different colony of cells, the osteoblasts, which are destined to form the bone. So here in this schematic figure, I would like to show you these three different parts of the dental follicle. This blue whole thing that you can see here right outside the Herpes epithelial root sheath, this fenestrated region, this fenestrated band is basically the Herpes epithelial root sheath. Outside the Herpes epithelial root sheath, this whole blue structure is dental follicle. So right adjacent to the Herpes epithelial root sheath, this part of the dental follicle is derived from the neural crest cells, and this specific part of the dental follicle develops into the cementum forming cells, the cementoblasts. Whereas this intermediate layer between the inner and the outer layer develops into fibroblasts and gives rise to PDL space and the PDL fibers. Whereas the layer right adjacent to the alveolar bone, this one, the outer one, is also mesodermal in origin, and it gives rise to odontoblasts, which are destined to form the bone. So this is how one part of the dental follicle is giving rise to three different types of cells in three different tissues of your tooth. We are going to individually talk about different cementum varieties and how they develop. As I've already mentioned that we have four different varieties of cementum: primary acellular cementum, secondary cellular intrinsic fiber cementum, mixed cementum, and the acellular afibrillar cementum. All these four varieties have different location over the root
of the tooth, and they have different functions in their particular locations. As we have already talked about them in detail, so I'm not going to go into the details of the functions and the variety of these varieties and their location. I'm going to just talk about the cementogenesis of these. Starting with the cementogenesis of the primary acellular extrinsic fiber cementum. Primary cementum has another name, which is the acellular extrinsic fiber cementum, which gives you a very good insight of what primary cementum actually is. The acellular part here refers to the matrix of this type of cementum being deprived or devoid of any cell entrapments. Which cells? The cells that are forming the cementum. कोई भी cementoblast इस मैट्रिक्स के अंदर इंट्रैप नहीं हुए होते, इसलिए हम इसको कहते हैं acellular. Extrinsic part of this term comes from the origin of the collagen fibrils within this type of cementum. Within this type of cementum, the collagen fibrils are not coming from the bulk of the collagen fibrils basically is not coming from the cementoblasts themselves. However, it is coming from the cells of the PDL, the fibroblasts. That is why we call it the extrinsic fiber cementum. So hence, the primary cementum is acellular extrinsic fiber cementum, and as we know that it is present from the cervical margin till the apex of the root, which means throughout the length of the root, primary cementum is present. So this is the location of the cementum. By location, what do you understand? That this is where this type of cementum has to develop. Most of the times, the primary cementum extends from the cervical margin of the root till the middle third, और एपिकल थर्ड में फिर सिर्फ सेकेंडरी सेमेंटम होता है. But this is not a hard and fast rule. Sometimes the primary cementum, in fact most of the times, the primary cementum extends through the entire root length from the cervical margin till the apex. So the cementogenesis basically starts along with the root formation. जैसे ही रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जैसे क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो आपकी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एट द लेट बेल स्टेज. जैसे ही रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है साथ साथ सीमेंटोजेनेसिस भी होना शुरू हो जाता है. सीमेंटोजेनेसिस एंड रूट डेंटिनोजेनेसिस आर बेसिकली आर अकरिंग बेसिकली साइमल्टेनियसली. एक साइड पर रूट डेंटिन डेवलप हो रही होती है और उसके ऊपर आपका सीमेंटम डेवलप हो रहा होता है. लेट बेल स्टेज के ऊपर व्हेन द क्राउन हैज़ बीन फुली फॉर्म्ड, एट दैट टाइम at the cervical loop near the margin, let me show you by the figure. Once the crown has fully formed, here at the cervical loop, जहाँ पे आपका outer और inner enamel epithelium reflect करता है, इस region से a structure which is called the Hertwig epithelial root sheath, a bilayered structure develops, and it invaginates downwards, mapping out the future root. In fact, covering or surrounding all of the dental papilla. It eventually surrounds all of the dental papilla except at the apex of the root. Once this structure, the Hertwig epithelial root sheath develops, the cementogenesis starts at the same time. So for cementogenesis to occur, we need to have the Hertwig epithelial root sheath. This is the first thing to remember. As the epithelial root sheath of the Hertwig proliferates, mapping out the future root, it separates the dental follicle on the outside and dental papilla on the inside by a basal membrane. जैसे ही आपकी हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ डेवलप होती है, वो इन्वेजिनेट कहाँ कर रही होती है? वो डेंटल पेपिला और फॉलिकल के दरमियान में इन्वेजिनेट कर रही होती है. अंदर वो इनक्लोज कर रही होती है डेंटल पेपिला और उसके बाहर आपका डेंटल फॉलिकल रह जाता है सारा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. This margin, this incontinuous margin is basically your Hertwig epithelial root sheath. इसकी अंदर वाली साइड पे आपके पास डेंटल पेपिला है और इसकी बाहर वाली साइड पे आपके पास यहाँ पर डेंटल फॉलिकल है. So जैसे ही Hertwig epithelial root sheath डेवलप होता है, Hertwig epithelial root sheath
ऑन द इनसाइड डेंटल पेपिला को सिग्नल सेंड करता है टू डिफरेंशिएट इनटू ओडोंटोब्लास्ट्स। जैसे ही ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएट होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द रूट। और रूट विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द रूट डेंटीन। ओडोंटोब्लास्ट का क्या काम है, उन्होंने डेंटीन बनानी है, और ये रूट है तो इसलिए रूट डेंटीन बनाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, द रूट प्री-डेंटीन starts forming. This root pre-dentine is initially, it is called pre-dentine because it is initially not mineralized. Once it gets mineralized, then it is called the hyaline layer. As we have already talked about the parts of the dentine in the last chapter, the outermost layer of the root dentine was called the hyaline layer. So this is how the hyaline layer of the root is develops, and this hyaline layer is about 10 micrometers wide. Okay. Once the root dentine starts forming, after that two important events occur. जैसे ही रूट डेंटीन बनती है और वो अनमिनरलाइज्ड प्री डेंटीन एपिथेलियल रूट शीथ के साथ कांटेक्ट में आती है, एज अ रिजल्ट एपिथेलियल रूट शीथ के अंदर एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाता है, उसकी सेल डेथ होना शुरू हो जाती है, और उसकी रूट शीथ के अंदर फेनेस्ट्रेशंस डेवलप हो जाती हैं, गैप्स डेवलप हो जाते हैं. And at the same time, some of the cells of the Hertwig epithelial root sheath, they start secreting certain enamel proteins like amelogenin and ameloblastin. और ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं कि ये कोलाजन प्री डेंटीन का जो कोलाजन मैट्रिक्स है जो प्री डेंटीन सिक्रीट हुई है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं. इन एनामल प्रोटीन्स का दो फंक्शन होते हैं. नंबर वन इज that they are responsible for some sort of epithelial mesenchymal interactions that lead to the induction of cementoblasts from the inner layer of the dental follicle. जैसे ही आपकी Hertwig epithelial root sheath fenestrate करती है, वो enamel proteins secrete करती हैं, वो enamel proteins रेसिप्रोकल सिग्नलिंग करती हैं विद द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डेंटल फॉलिकल और उनको कहती हैं कि आप सीमेंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम ये एक और काम भी कर रही होती हैं, ये हैलीन लेयर की मिनरलाइजेशन पैटर्न को कंट्रोल कर रही होती हैं, क्योंकि है प्री डेंटीन रूट की तो सिक्रीट हो चुकी है, अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मिनरलाइज करना है. तो ये एमिलोजेनिन्स और एमिलोब्लास्टिन्स क्या करती हैं, ये हैलीन लेयर के अंदर प्री डेंटीन लेयर के अंदर बेसिकली फ्यूचर हैलीन लेयर के अंदर जाकर उसकी मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करती हैं. और उस मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करने की एक रीज़न है और वो ये है कि जो आपकी रूट प्री डेंटीन है वो नॉर्मल डेंटीन की तरह कम्प्लीटली मिनरलाइज एक साथ नहीं कर जाती, वो पार्ट्स में मिनरलाइज करती है. और उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर सीमेंटम के साथ उसने एक यूनियन बनाना होता है, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन जिसको हम कहते हैं सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन. अब ये जो मिनरलाइजेशन आपकी एमिलोजेनिन्स और एमिलोब्लास्टिन्स रेगुलेट कर रहे हैं, ये कैसे रेगुलेट करते हैं, दे बेसिकली स्टार्ट द मिनरलाइजेशन अ फ्यू माइक्रॉन्स विद इन द हैलीन लेयर. मतलब सरफेस से हैलीन लेयर मिनरलाइज होना स्टार्ट नहीं करती, सरफेस से थोड़ा सा अंदर से मिनरलाइज होना स्टार्ट करती है. मतलब कि इसका मतलब ये है कि सरफेस थोड़ी सी अनमिनरलाइज रह जाती है और नीचे सारी डेंटीन मिनरलाइज हो जाती है. एज अ रिजल्ट आउटरमोस्ट सरफेस अनमिनरलाइज रह जाती है, एंड वी से दैट द आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ द रूट डेंटीन अंडरगोज अ डिलेड मिनरलाइजेशन. इट स्टेज unmineralized for a certain period of time till the cementum has established a union with this unmineralized layer. और इसकी रीज़न ये होती है कि दोनों टिश्यूज़ unmineralized फॉर्म में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह इंटरमिंगल कर जाएं ताकि उनके दरमियान में एक अच्छा मैकेनिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाए. Once the mineralization has been regulated and the cementoblast have been सीमेंटोब्लास्ट फॉर्मेशन हैज़ बीन इंड्यूस्ड, उसके बाद क्या होता है कि जो एमिलोजेनिन्स और एमिलोब्लास्टिन्स हैं ये या तो दे आर लॉस्ट और देयर रेमनेंट्स आर समटाइम्स प्रेजेंट फाउंड इन द ग्रैन्युलर लेयर ऑफ द रूट डेंटिन. ये तो हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप ये होता है कि पहला स्टेप क्या था कि फेनेस्ट्रेशंस डेवलप हुई थी और एमिलोजेनिन एमिलोब्लास्टिन सिक्रीट हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ विद द
रूट डेंटिन। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जो फेनेस्ट्रेशंस डेवलप हुई हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एपोप्टोसिस ऑफ द हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ, उन फेनेस्ट्रेशंस या उन गैप्स के दरमियान में से डेंटल फॉलिकल के सेल्स को मौका मिल जाता है कि वो उन गैप्स में से स्लिप पास करके डेंटल पैपिला की डायरेक्शन में चले जाएं जहाँ पे आपकी प्री डेंटिन पड़ी हुई है रूट की। अब जैसे ही ये फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स डेंटल फॉलिकल के आपकी स्वीप करते हैं थ्रू दीज गैप्स और फेनेस्ट्रेशंस ऑफ द हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द cementoblast as a result of epithelial mesenchymal interactions. And what do we get? The cementum forming cells, cementoblast. तो एक तो ये सोर्स होता है cementoblast का। दूसरा, it is believed that some of the cells from the Hertwig epithelial root sheath themselves undergo some sort of epithelial mesenchymal transformation and they transform into cementum forming cells, the cementoblasts. So as a result of this whole thing, we get the cementum forming cells, which are the cementoblasts. अब जब हमारे पास cementoblasts आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली अपना काम करना शुरू कर देंगे, वो सीमेंटम तक कोलेजन फाइबर सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। अब ये cementoblasts जो हैं दे स्टार्ट सिक्रीटिंग कोलेजन फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट fibers that are oriented perpendicular to the root surface और इन fibers को हम कहते हैं fibrous fringe। अब ये जो इनिशियल जो है fibers secrete हो रहे होते हैं cementoblast से, ये एक तो short fibers होते हैं, their orientation is perpendicular to the root surface and they are secreted against the unmineralized dentine। if you remember कि surface dentine की थोड़ी सी unmineralized रह गई थी, उसके against ये secrete हो रहे होते हैं। As a result, these collagen fibrils of the cementum, the fibers of the fibrous fringe, intermingle with the unmineralized fibers of the dentine. And once this intermingling happens, अच्छी तरह से वो एक दूसरे के साथ amalgamate कर जाते हैं डेंटिन के collagen fibrils और fibrous fringe के collagen fibrils, तो क्या होता है? जो mineralization stop हुई हुई थी surface पे hyaline layer की, it starts to spread outwards and then the mineralization spreads onto the surface of the root dentine and it does not stop there, it continues and it penetrates into the cementum, a few microns into the cementum और फिर साथ में fibrous fringe को भी अपने साथ mineralize कर लेते हैं और as a result आपकी fibrous fringe रूट डेंटिन के साथ जुड़ जाती है, मिनरलाइज हो जाती है एंड यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जंक्शन बिटवीन सीमेंटम एंड डेंटिन कॉल्ड द सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन। समझ में आई? In this way, the first few microns of the primary cementum are firmly attached to the dentine surface with the help of short fibers that are perpendicularly oriented to the root surface called the fibrous fringe. In this whole process, cementoblasts जो fibrous fringe जो collagen fibers secrete कर रहे हैं वो साथ साथ away from the dentine surface भी move करते जाते हैं and they continue to secrete the collagen fibers that result in the thickening and lengthening of the fibrous fringe और साथ साथ वो नॉन कोलाजिनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स भी सिक्रीट करते जाते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं सीमेंटम की मिनरलाइजेशन को। Hence, the collagen that is initially formed at the advancing root edge has collagen fibrils of local origin. अभी तक collagen fibrils बाहर से कोई नहीं आए, अभी तक सारे collagen fibrils cementoblast ने खुद प्रोड्यूस किए हैं fibrous fringe के जो collagen fibrils हैं, इसलिए अभी तक सारे collagen fibrils intrinsic origin के हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि once the cementum has been deposited about 15 to 20 micrometers thickness cementum की deposit हो जाती है, तो तब क्या होता है कि जो adjacent PDL space है उसके अंदर fibroblast collagen fibrils produce कर रहे होते हैं for PDL। PDLs जब cementum about 15 to 20 micrometers thick हो जाता है तो PDL space के collagen fibrils जो parallel to the root surface होते हैं
वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं एंड दे पेनिट्रेट इनटू द सीमेंटम और वो आकर फाइब्रस फ्रिंज के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जो कोलेजन आपकी सीमेंटम के अंदर मेजर कोलेजन फिब्रिल्स बल्क फाइबर बंडल्स जो आ रहे हैं, जो कि पीडीएल से आ रहे हैं, वो फिब्रोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किए हैं और इनको क्योंकि इनकी आउटसाइड सोर्स से आ रहे हैं, इनका ओरिजिन एक्सट्रिंसिक है, इसलिए हम इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। इस टाइप ऑफ सीमेंटम को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। साथ साथ आपके सीमेंटोब्लास्ट अपना नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन सिक्रीट करते जा रहे हैं और वो अवे फ्रॉम द डेंटिन सरफेस मूव करते जा रहे हैं। चूँकि प्राइमरी सीमेंटम एक लीनियर मैनर में स्लोली प्रोड्यूस होता है, तो जो सीमेंटोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स और सीमेंटम मैट्रिक्स, वो कभी भी अपने ही मैट्रिक्स में इंट्रैप नहीं होते क्योंकि स्लोली लीनियरली डेवलप हो रही होती है प्राइमरी सीमेंटम। That is why they never get entrapped within the matrix that they are secreting, and hence they are called, this type of cementum is called the acellular cementum. The cells producing the acellular cementum are always present on the surface, they never get entrapped within the matrix. ठीक है। अर्ली स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सीमेंटम फॉर्मेशन में क्या होता है कि सीमेंटोब्लास्ट साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि पहले सीमेंटोब्लास्ट ने फाइब्रस फ्रिंज सिक्रीट की, उस टाइम के ऊपर पीडीएल के फाइबर्स पैरेलली अरेंज थे, अभी उन्होंने सीमेंटम के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया। सीमेंटोब्लास्ट फाइब्रस फ्रिंज कोलेजन फिब्रिल सिक्रीट करती हैं, कोलेजन फिब्रिल सिक्रीट करती हैं परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस, जिनको हम कहते हैं फाइब्रस फ्रिंज। वो डेंटिन के साथ इंटरमिंगल कर जाते हैं, डेंटिन अनमिनरलाइज डेंटिन के साथ, और वहाँ पर जब डेंटिन की मिनरलाइजेशन कंटिन्यू होती है तो वो साथ ही मिनरलाइज हो जाते हैं। ठीक है। और साथ साथ सीमेंटोब्लास्ट क्या कर रहे होते हैं, नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स भी सिक्रीट कर रहे होते हैं जो फाइबर बंडल्स और कोलेजन फाइबर्स के दरमियान की स्पेस को फिलअप करते हैं और बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं सीमेंटम का। अब ये कोलेजनस प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनके अंदर इनकी मिनरलाइजेशन रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो सीमेंटोब्लास्ट को रूट डेंटिन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे सीमेंटम अटैचमेंट प्रोटीन्स हो गई, बोन सीएलओ प्रोटीन्स, ऑस्टियोपोंटिन, साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन्स। सो सीमेंटोब्लास्ट बेसिकली एट ऑल टाइम्स इज प्रोवाइडिंग also providing the non-collagenous matrix proteins to the cementum matrix, and these proteins have various function. जैसे जैसे प्राइमरी सीमेंटम की डेवलपमेंट कंटिन्यू करती है, इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन थिकनेस स्लोली, and it slowly continues to mineralize, and hence the establishment between the collagen fibrils from the periodontal ligament, which are also called the principal collagen fibrils or principal collagen fibers, they attach firmly with the fibrous fringe at the root surface, and you get the first attachment of the ligament of the periodontal ligament to the रूट सरफेस, जिसकी वजह से आपकी बेसिकली टूथ की अटैचमेंट टूथ सॉकेट के अंदर हो रही होती है। अगर याद हो तो प्राइमरी सीमेंटम का मेजर फंक्शन क्या था, अटैचमेंट। ठीक है। हैन इसी वजह से पीडीएल के फाइबर्स आकर आपकी रूट सरफेस के साथ अटैच होते हैं, सिर्फ इसी वजह से इसकी अटैचमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सीमेंटम, जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी सीमेंटम स्लोली डिपॉजिट करता है थ्रू आउट लाइफ, तो उसका जो रेट ऑफ डिपॉजिशन है वो बहुत स्लो है, अबाउट 2 माइक्रोमीटर्स पर ईयर सीमेंटम डिपॉजिट होती है। सीमेंटोब्लास्ट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एडजेसेंट पेरिडोंटल लिगामेंट। अब जो सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स हैं विच आर दी सीमेंटोब्लास्ट, और जो पेरिडोंटल लिगामेंट फॉर्मिंग सेल्स हैं विच आर दी फिब्रोब्लास्ट, इन दोनों के दरमियान में इन दोनों की फिनोटाइप बहुत डिफरेंट होती है, दे कैन बी ईजिली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर्स के दरमियान में जब पेरिडोंटल लिगामेंट्स आपकी सीमेंटम के अंदर आके फाइब्रस फ्रिंज के साथ स्टिच करते हैं, अटैच करते हैं, तो दरमियान में सीमेंटोब्लास्ट पड़े होते हैं जो अभी नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो दरमियान में सीमेंटोब्लास्ट आ जाते हैं, दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, and their organelles are associated with protein synthesis because their function at this time is
synthesis of the non-collagenous matrix proteins of the cementum. These cells basically secrete the matrix proteins of the cementum onto the surface of the slowly thickening cementum. और इस cementum की जो speed होती है वो इतनी slow होती है cementum formation की, primary cementum formation की, that it prevents the entrapment of these cells within the matrix that it is producing. And as a result of that linear slow deposition, there is no layer of pre-cementum like pre-dentine present on the surface of the primary cementum. चूँकि primary cementum linearly deposit हो रहा होता है at a very slow pace, और वो साथ साथ linearly at a very slow pace mineralize भी इसी तरह कर रहा होता है. तो इस रीज़न की वजह से कोई unmineralized matrix cementum primary cementum के ऊपर नहीं present होता, just like we had in dentine in the form of pre-dentine और bone में in the form of osteoid होता है. यहाँ पर primary cementum में कोई unmineralized region नहीं होता. ये फिगर मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. दिस शोज द एडवांसिंग रूट एज. दिस इज़ योर एडवांसिंग रूट एज विच इज़ द हर्पिक एपिथेलियल रूट शीथ. इसके अगेंस्ट रूट डेवलप हो रही होती है. इसकी अंदर वाली साइड पे यहाँ पर आपके पास डेंटल पैपिला है जो कि ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट करता है एंड इट फॉर्म्स द डेंटीन. पहले प्री डेंटीन बनती है और फिर वो मिनरलाइज होती जाती है. On the outside, we have the investing layer of the dental follicle, which develops into cementoblasts, and they start secreting cementum against the root dentine. अच्छा, अब जो मैंने fibrous fringe के बारे में बात बताई थी, ये डायग्राम मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ. दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ क्वाइट ट्रिकी. इफ़ यू डू नॉट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, आप लोग को समझ में नहीं आएगी. इस फिगर में प्राइमरी सीमेंटम डेवलप हो रहा है. ये जो आपको रीजन सेल्स नज़र आ रहे हैं CB जिनके अंदर लिखा हुआ है, दीज आर दी सीमेंटोब्लास्ट्स. और ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये वाला सारा रीजन जो है वो आपका प्रीडेंटीन ऑफ द रूट है. प्रीडेंटीन का मतलब है अभी मिनरलाइज नहीं हुआ. सीमेंटोब्लास्ट क्या करते हैं कि ये कोलेजन फाइबर्स सिक्रीट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट दिस अनमिनरलाइज्ड प्रीडेंटीन. और ये जो कोलेजन फिब्रिल्स हैं, इन दीज आर शॉर्ट and they are perpendicular to your, this is your root surface, and they are perpendicular to your root surface, and they are called the fibrous fringe. ये fibrous fringe जो develop कर रहा है आपके cementoblasts, ये intrinsic origin के हैं और ये जाकर embed कर देते हैं, ये जाके intermingle कर जाते हैं प्रीडेंटीन के साथ. यहाँ पर आपको बहुत अच्छी intermingling नजर आ रही है. This is your cementoblast producing your short fibrous fringe collagen fibrils, which is intermingling with the collagen fibrils of the predentine. Once this intermingling is complete, what happens is your surface predentine unmineralized layer gets mineralized. ये आपको डार्क इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मिनरलाइज हो गया. और अगर आप गौर से देखें तो fibrous fringe भी इसके साथ ही, ये सारे शॉर्ट परपेंडिकुलर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये fibrous fringe है. ये साथ इसके मिनरलाइज हो गई है, जिसकी वजह से ये वाली फाइब्रस फ्रिंज जो कि बेसिकली सीमेंटम है और इसके नीचे जो डेंटीन है, ये एक दूसरे के साथ इन्होंने स्ट्रॉन्ग यूनियन बना ली है क्योंकि दोनों एक साथ मिनरलाइज हो गए हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो जंक्शन डेवलप हो जाता है वो उसको हम कहते हैं डेंटिनो सीमेंटल जंक्शन. अब इस फिगर में यहाँ आपको ये डेंटीन नज़र आ रही है, यहाँ आपको जंक्शन नज़र आ रहा है और ये जंक्शन में से देखें आपको फाइब्रस फ्रिंज निकलता हुआ नज़र आ रहा है. अभी तक यहाँ पर कोई एक्सट्रिंसिक सोर्स का फाइबर नहीं आया. अब ये सीमेंटोब्लास्ट से बाहर ये वाला जो रीजन है, ये सारा PDL स्पेस है. PDL स्पेस के अंदर फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो PDL के कोलेजन फिब्रिल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. अभी तक PDL के कोलेजन फिब्रिल्स सारे इस डायरेक्शन में पड़े होते हैं, पैरेलल टू द रूट सरफेस. जैसे ही फाइब्रस फ्रिंज आपकी डेंटीन के साथ स्टिच कर जाती है, डेंटीन के साथ मिनरलाइज कर जाती है, डेंटिनो सीमेंटल जंक्शन बन जाता है, तो क्या होता है कि ये जो PDL स्पेस के अंदर यहाँ पर PDL के कोलेजन फिब्रिल्स पड़े होते हैं, वो आते हैं और वो आकर इस कोलेजन फाइब्रस फ्रिंज के साथ यहाँ पर इन फाइबर्स के साथ स्टिच कर जाते हैं. अब जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये आपकी है, ये आपके परपेंडिकुलर फाइबर्स हैं फाइब्रस फ्रिंज के. और PDL स्पेस से देखिए सीमेंटोब्लास्ट अभी भी अपना नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स सिक्रीट कर रहे हैं.
बाहर से आपकी फाइबर बंडल्स आए बड़े बड़े पीडीएल स्पेस से, और वो आकर आपके फाइब्रस फ्रिंज के साथ अटैच हो गए। अब ये वो फाइबर्स हैं जो एक्सट्रिंसिक सोर्स के हैं, जिसकी वजह से हम इस प्राइमरी सीमेंटम को एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम कहते हैं। और यही पीडीएल के जो फाइबर्स, जो कि प्रिंसिपल फाइबर्स जिनका नाम है, इनको शार्पीस फाइबर्स भी कहते हैं, ये बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टूथ को की सॉकेट के साथ। दैट इज़ वाई प्राइमरी सीमेंटम का मेजर फंक्शन वाज अटैचमेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक तो हमने बात की थी कि सीमेंटम, प्राइमरी सीमेंटम सिक्रीट कैसे हुआ। अब वो मिनरलाइज कैसे होता है, कितने परसेंट मिनरलाइज होता है? 45 to 50% मिनरलाइज होता है। मिनरलाइजेशन सीमेंटम खुद नहीं कंट्रोल कर सकता अपनी। सीमेंटम की मिनरलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया, डेंटीन ही कंट्रोल कर रहा होता है। डेंटीन अपनी मिनरलाइजेशन भी कर रहा होता है और वो साथ ही सीमेंटम की मिनरलाइजेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। वाई? Because if there is an interference with the formation of root dentine, तो automatically cementogenesis has been seen to inhibit it। मतलब कि अगर रूट डेंटिनोजेनेसिस या रूट डेंटिन की फॉर्मेशन के अंदर कोई इंटरफेरेंस आए तो सीमेंटम फॉर्मेशन नहीं होती। इसका मतलब है कि रूट डेंटिन सीमेंटम की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है। सो दैट इज़ हाउ वी नो दैट सीमेंटम की जो मिनरलाइजेशन है दैट इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द डेंटिन मिनरलाइजेशन। दूसरी जो चीज़ मिनरलाइजेशन को कंट्रोल कर रही होती है दैट इज द alkaline phosphatase produced by the fibroblasts of the periodontal ligament. Fibroblasts of the periodontal ligament, because they are present adjacent to the cementum and they are rich in alkaline phosphatase, वो mineralization of the cementum को control कर रहे होते हैं। So we have two factors controlling the mineralization of cementum, and they are the dentine and the alkaline phosphatase from the fibroblasts of the PDL. The overall degree of mineralization that we have to achieve with cementum is 45 to 50%. इसमें भी सारी प्राइमरी सीमेंटम इवनली मिनरलाइज नहीं होती कि सरफेस से लेकर एंड तक सारी इवनली मिनरलाइज हो जाए। इसमें इनरमोस्ट रीजन सबसे कम मिनरलाइज होता है, और फिर उसके बाद जो आउटर लेयर्स होती हैं उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग बैंड्स होते हैं, एक लेस मिनरलाइज, मोर मिनरलाइज, लेस मिनरलाइज, मोर मिनरलाइज, एंड दीज बैंड्स आर रनिंग पैरेलल टू दी root surface. Before I talk about the structural lines, I want to show you in a schematic figure जो मैंने आपको हेलिन लेयर की या सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन की फॉर्मेशन के बारे में बताया था। लास्ट लेक्चर में दिस वाज नॉट क्लियर इनफ, सो आई हैव मेड अ बेटर स्कीमेटिक फिगर। ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स बनाया है, दिस बेसिकली इज योर रूट प्रीडेंटिन। अब जब आपकी हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ डेवलप करती है तो हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ ओडोंटोब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट कराती है और वो फॉर्म करना शुरू कर देते हैं रूट प्रीडेंटिन। रूट प्रीडेंटिन क्या करती है? रूट प्रीडेंटिन जब डेवलप होती है तो वो अनमिनरलाइज्ड होती है, इसलिए हम उसको प्रीडेंटिन कहते हैं। साथ ही हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ के अंदर फेनेस्ट्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ से एमिलोजेनेंस और नॉन एमिलोजेनेंस सिक्रीट होते हैं, जो कि आके आपकी रूट प्रीडेंटिन को की मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। अब रूट प्रीडेंटिन की मिनरलाइजेशन नॉर्मल डेंटिन की मिनरलाइजेशन से डिफ़र करती है, और वो ऐसे डिफ़र करती है कि ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ना, ये है आपकी सीमेंटम वाली साइड, इससे इस तरफ सारी आपकी सीमेंटम है और इस तरफ आपकी सारी डेंटिन है। बेसिकली है सारी डेंटिन, बट दिस इज़ योर सीमेंटम फेस ऑफ द डेंटिन एंड दिस इज़ योर पल्प फेस ऑफ द डेंटिन। ठीक है, अब मिनरलाइजेशन किस तरह से होती है इस रूट डेंटिन की? ये इस डायरेक्शन में होती है जो मैंने एरो लगाया है। ये किस तरह है कि ये वाला जो रीजन है ये इतना सा फ्यू माइक्रोन सरफेस के छोड़ के नीचे नीचे सारा मिनरलाइज हो जाता है और ये सरफेस अनमिनरलाइज रह जाती है। एट द सेम टाइम हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ की फेनेस्ट्रेशन से डेंटल फॉलिकल के सेल्स गैप्स के थ्रू अंदर आते हैं और उनकी एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शंस होती हैं विद द रूट डेंटिन एंड दे फॉर्म द सीमेंटोब्लास्ट्स एंड यू गेट द सीमेंटोब्लास्ट्स। सीमेंटोब्लास्ट्स स्टार्ट secreting collagen fibers। ये short collagen fibers perpendicular to the root surface ये secrete करना शुरू कर देते हैं। ये collagen fibrils
चूँकि ये इतना सा पोर्शन डेंटिन का अनमिनरलाइज्ड है, दे गेट अ चांस टू इंटरमिंगल विद द फाइबर्स ऑफ दिस रूट डेंटिन, एंड दीज फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीमेंटोब्लास्ट आर कॉल्ड द फाइब्रस फ्रिंज। ये डेंटिन के फाइबर्स के साथ इंटरमिंगल करते हैं। जब ये कम्प्लीटली डेंटिन के फाइबर्स के साथ इंटरमिंगल कर जाते हैं तो डेंटिन की जो बच गई थी मिनरलाइजेशन वो कंप्लीट होती है, और वो इस तरह कंप्लीट होती है कि इस डायरेक्शन में आपकी सरफेस डेंटिन मिनरलाइज हो जाती है, और बट इट डज द मिनरलाइजेशन डज नॉट स्टॉप हेयर, इट कॉन्टीन्यूज, और वो साथ में तकरीबन फ्यू माइक्रॉन्स सीमेंटम के फाइब्रस फ्रिंज को भी साथ में मिनरलाइज कर लेता है, एंड यू गेट द डेंटिनो सीमेंटल जंक्शन हेयर। अभी तक बाहर से कोई कोलेजन फाइबर्स नहीं आए, सारे कोलेजन फाइबर्स सीमेंटोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये सारे इंट्रिंसिक फाइबर्स हो गए। अब वंस about 15 to 20 micrometers of the cementum thickness has produced, मतलब कि अगर समझो कि अगर मैं ग्रीन लाइन से यहाँ ड्रॉ करूँ, इतना अगर सीमेंटम प्रोड्यूस हो जाए, अबाउट इफ दिस इज 15 to 20 micrometers सपोजिटली, तो इस टाइम के ऊपर क्या होता है कि जो पीडीएल, इससे पहले पीडीएल स्पेस के अंदर सारे फिब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो सारे पैरेलल टू द रूट सरफेस पड़े होते हैं। जब 15 to 20 माइक्रोमीटर्स सीमेंटम सिक्रीट हो जाता है तो ये जो फाइबर्स हैं ये आपके सारे आते हैं सीमेंटम के अंदर, और यहाँ आके फाइब्रस फ्रिंज के साथ अपनी ओरिएंटेशन ये चेंज करते हैं, और ये फाइब्रस फ्रिंज के साथ आके स्टिच हो जाते हैं। और ये चूँकि सीमेंटोब्लास्ट प्रोड्यूस नहीं करे, ये फिब्रोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किए हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, पीडीएल स्पेस से आ रहे हैं, तो इसलिए इन फाइबर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर्स, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस सीमेंटम एज द एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। मीनवाइल सीमेंटोब्लास्ट्स अपना काम कर रहे होते हैं, वो नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन सिक्रीट कर रहे होते हैं, और वो साथ साथ अवे फ्रॉम द डेंटिन सरफेस भी मूव कर रहे होते हैं, और वो स्लोली अपना मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे होते हैं सच दैट दे डू नॉट गेट entrapped into the matrix that they are forming, and that is why this type of cementum is called the acellular cementum as well. समझ में आई? अब ये मिनरलाइज कैसे करता है? ये आहिस्ता आहिस्ता मिनरलाइज करते हैं, इसकी मिनरलाइजेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं दो फैक्टर्स, डेंटिन एंड alkaline phosphatase from the fibroblasts, and it mineralizes slowly such that there is no unmineralized layer present at the mineralization front, जिसको हम प्री सीमेंटम कहते हैं। प्री डेंटिन की तरह या ऑस्टियोइड की तरह ऐसी कोई लेयर नहीं बनती, क्योंकि लीनियरली मिनरलाइजेशन हो रही होती है, एंड द मिनरलाइजेशन दैट सीमेंटम हैज़ टू अचीव इज अबाउट 45 to 50%, और वो मिनरलाइजेशन इतनी रेगुलर नहीं होती, मतलब इनर मोस्ट लेयर सबसे कम मिनरलाइज होती है, और उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिंग बैंड्स होते हैं लेस और मोर मिनरलाइज के, और इन ऑल्टरनेटिंग बैंड्स की वजह से इस सीमेंटम के अंदर इंक्रीमेंटल लाइंस डेवलप हो जाती हैं, जिनको स्ट्रक्चरल लाइंस भी कहते हैं, एंड दे सिग्निफाई और नोटिफाई दैट द सीमेंटोजेनेसिस ऑफ द प्राइमरी सीमेंटम इज अकरिंग रिदमिकली. What does that mean? That the cementum is being laid down in increments, and those increments basically show the periods of alternate activity and rest. मतलब कि एक टाइम के अंदर एक्टिवली सीमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है और फिर रेस्ट का पीरियड है, फिर एक्टिवली प्रोड्यूस हो रहा है, फिर रेस्ट का पीरियड है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन लाइंस विदिन द सीमेंटम स्ट्रक्चर, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल स्टेन्स और पोलराइज्ड लाइट के अंदर ही नज़र आती हैं. इसमें से जो पीरियड ऑफ डिक्रीज्ड एक्टिविटी या पीरियड ऑफ रेस्ट होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीमेंटल लाइंस. जो पीरियड ऑफ रेस्ट होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीमेंटल लाइंस. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेस्ट, content of ground substance in that region is high, mineral content is also high. However, कोलेजन उस पॉइंट के उस पार्ट के अंदर पीरियड ऑफ रेस्ट के टाइम पे जो सीमेंटम बन रही होती है उसके अंदर कोलेजन की अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू द एडजेसेंट लेयर विच इज़ द
layer formed during the period of activity. And these incremental lines of cementum are called the incremental lines of Salter. Salter, Salter. These lines basically may also reflect changes in the crystallite orientation. बिल्कुल वैसे ही जैसे enamel की incremental lines के अंदर होता था. जो ये periodicity है incremental lines की, ये annual होती है. जैसे कि मैंने बताया था कि cementum अब बहुत slowly बनता है, 2 micrometers per year उसका rate होता है. तो ये periodicity इसलिए annual होती है और इससे हम age of the tooth या age of the root भी बता सकते हैं. Slow increase in the thickness results in lines that are closer together. Obviously जब slowly deposit हो रही होती है तो जो structural lines हैं वो करीब करीब होती हैं. So इससे हमें क्या पता चला कि cementogenesis incrementally rhythmically हो रही होती है और उसमें alternating periods of rest और activity होते हैं. Period of rest signify करता है basically incremental line को और उसको हम कहते हैं incremental line of Salter. SALTER टेबल सॉल्ट से निकला तो टेबल सॉल्ट से नहीं है, लेकिन इस तरह आप याद कर सकते हैं. किताब में नहीं लिखा हुआ इसलिए प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें. इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ सॉल्टर वाले रीजन के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस और मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है और कोलेजन की अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू दी एडजेसेंट सीमेंटम. इस लाइन के अंदर या ये जो लाइन फॉर्मेशन है इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दी चेंजेस इन द क्रिस्टलाइट ओरिएंटेशन ऑफ द सीमेंटम. दीज लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली क्योंकि एनुअली सीमेंटम जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है एट अबाउट 2 माइक्रॉन्स पर ईयर. और जहाँ पर स्लोली इंक्रीज कर रही होती है थिकनेस वहाँ पर इंक्रीमेंटल लाइन्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं. इस फिगर में आपको स्ट्रक्चरल लाइन्स बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं. सीमेंटम को जो पोलराइज लाइट में देखते हैं तो जो लाइंस आपकी रूट सरफेस के पैरेलल रन कर रही होती हैं वो बेसिकली इंक्रीमेंटल डिपॉजिशन सिग्निफाई कर रही होती हैं या इंक्रीमेंटल लाइंस शो कर रही होती हैं, जबकि जो शॉर्ट परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं रूट सरफेस के वो बेसिकली आपकी कोलेजन फिब्रिल्स होती हैं. जैसे कि आप अगर ये देखें ये वाली जो लाइंस हैं दीज एक ये वाली ये पैरेलल टू दी रूट सरफेस ये बेसिकली जहाँ पे एरो शो लगा हुआ है ये आपकी इंक्रीमेंटल लाइंस हैं पैरेलल टू द रूट सरफेस. और ये जो आपको शॉर्ट परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली कोलेजन फिब्रिल्स हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस होते हैं. This is all about the cementogenesis of the primary cementum. मैंने बहुत टाइम लिया है इसके ऊपर और पिछले लेक्चर की भी आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने इस लेक्चर में रिपीट की हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लें. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी सीमेंटम की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. प्लीज़ किताब से ये पढ़ कर आइएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.